Good morning everyone. Today in General Science Biology we will start new chapter, that is chapter number 16, and the name of the chapter is Sustainable Management of Natural Resources, यानी प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन. Living in harmony with nature is now not new to us. Sustainable living has always been an integral part of India's tradition and culture. It has been integrated with our long-lasting traditions and practices, customs, art and festivals, food, beliefs, rituals and folklore. Ingrained within us is the philosophy that entire natural world be in harmony, which is reflected in the famous phrase in Sanskrit, Vasudhaiva Kutumbakam. That means that the entire earth is one family. The phrase is mentioned in Maha Upanishad, that is probably a part of the ancient Indian text Atharvaved. In the 9th class, we had studied some natural resources like soil, air and water. In the previous chapter, we had studied about the pollution, which is the result of the man-made activities, and we shall be looking at our natural resources like forest, wildlife, water, coal and petroleum, and see what are the issues at stake in deciding how these resources are to be managed for sustainable development along with the input from our traditional practices. We often hear or read about the environmental problems. These are often global level problems and we feel helpless to bring any changes. There are international laws and the regulations. At the same time, national laws and the acts for environmental protection, they are working independently. There are some national and international organizations are there which are keeping efforts for protection of our environment. आज हम जनरल साइंस बायोलॉजी में एक नए अध्याय अर्थात अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन का अध्ययन करेंगे. ये वीडियो नंबर 1 है. प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना हमारे लिए नया नहीं है. जीवन हमेशा भारत की परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है. यह हमारी संपोषित लंबी परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों और कलाओं का व शिल्प, त्यौहार, भोजन, आस्थाओं, अनुष्ठान व लोकगीतों के साथ एकीकृत है. हमारा दर्शन शास्त्र यह कहता है कि संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे, जो संस्कृत के प्रसिद्ध वाक्यांश वसुधैव कुटुंबकम के लिए परिलक्षित होता है. अर्थात संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है. इस वाक्यांश का उल्लेख महा उपनिषद में मिलता है, जो शायद प्राचीन भारतीय साहित्य अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है. कक्षा 9वीं में हमने विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, वायु, जल के बारे में पढ़ा था तथा यह भी जाना था कि इसके विभिन्न संगठकों का प्रकृति में बार बार चक्रण किस प्रकार होता है. इसी प्रकार हम पिछले कुछ अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलापों में या कार्यकलापों से इन संसाधनों का प्रदूषण होता है. अब हम उन संसाधनों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे और यह भी जानेंगे कि इनका किस प्रकार उपयोग हम कर रहे हैं. और हमें यह विचार करना चाहिए कि हमें इन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए जिससे संसाधनों का संपोषण हो सके और हम अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकें. हम इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, वन्यजीव, जल, कोयला और पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे और उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे जो कि संपोषित विकास हेतु इन संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं. हमने अक्सर पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में
सुना है या समाचार पत्रों में पढ़ा है, यह अधिकतर वैश्विक समस्याएं हैं। इनके समाधान अथवा परिवर्तन में हम अपने आप को मजबूर पाते हैं। इसके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं और कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं। इसी प्रकार हमारे देश में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। Now, the awareness about the problem caused by unthinkingly exploiting our resources has been a fairly recent phenomenon in our society, and once this awareness rises, some action is usually taken. We have heard about the Ganga Action Plan. This multi-crore project came out in 1985 because the quality of the water in the Ganga was very poor. Coliform is a group of bacteria found in human intestines whose presence in water indicates contamination by disease-causing microorganisms. संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से उत्पन्न समस्याओं के विषय में जागरूकता हमारे समाज में अपेक्षाकृत एक नया आयाम है। जब यह जागरूकता बढ़ती है तो कुछ न कुछ कदम या प्रयास भी उठाए जाते हैं। हमने गंगा सफाई योजना के बारे में सुना हुआ है। यह प्लान 1985 में प्रारंभ किया गया था क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। कोलीफॉर्म जीवाणु का एक ऐसा वर्ग होता है जो कि मानव की आंत में पाया जाता है और जल में इसकी उपस्थिति इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का प्रदूषित होना दर्शाती है।